Good morning, students. Is my voice clear to you all? Good morning, ma'am. आवाज clear है? Good morning, all of you. आ रही है ना आवाज? Yes, ma'am. So, आयास, आपने बहुत अच्छी स्पीच दी थी. Very well done. Thank you, ma'am. बहुत अच्छा वीडियो बनाया था आपने. ऐसे ही आगे भी पार्टिसिपेट करते रहिएगा. चलो. So, what were we reading last time? हमने हनी ड्यू का कहाँ तक हो गया था बताइए. ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट पूरा हुआ था. Yes, ma'am. Glimpse of the past complete हो गया था. So now come to the poem McPutty the Mystery Cat. निकाल लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चों, आप लोगों ने ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट के एक्सरसाइजेस किए कि नहीं कॉपी में? राधिका कंप्लीट हुआ? Ma'am, glimpse of the ma'am complete हो गया. चलो, वेरी गुड. अब आ जाइए मैकबुटी द मिस्टीरियस कैट. चलो आयास पढ़ो. Yes, ma'am. McPutty the mystery cat. McPutty is a mystery cat. He is called the hidden paw. For he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, McCavity is not there. McCavity, there's no one like McCavity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, McCavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, McCavity is not there. McCavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he is half asleep, he always wide awake. McCavity, there's no one like McCavity, for he is a fiend in villain shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime discovered, the McCavity is not there. T.S. Eliot.
हाँ, so this poem is written by T.S. Eliot. चलो राधिका, अब आप इसको रीड करो. Yes, ma'am. Machiavelli is a story cat. He is called the hidden foe, for he is the master criminal who can fight the law. He is the descendant of Scotland Yard, the flying birds despair, for when they reach the scene of crime, Machiavelli is not there. Machiavelli there. No one like Machiavelli. He is broken every human law. He breaks the law of gravity. His power and indignation would make a friend share. And when you reach the scene of crime, Machiavelli is not there. You may seek him in the basement. You may look up, but I tell you once and once again, Machiavelli is not there. Machiavelli is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him or his eyes or tongue. His brow is deeply lined with hue. His head is highly turned. His coat is dusty from neglecting his whisper or uncomfort. He waves his head from side to side, him with movements like a snake. And when he is half asleep, he is always wide awake. Machiavelli, there is no one like Machiavelli, for he is founded of fine line faith, a master of brevity. You may meet him in a bar till you may see him in the square. But when a crime is discovered, then Machiavelli is not there. Here, justice. हो गया. Yes, ma'am. चलो. So this poem, the poet T.S. Eliot is describing about a cat whose name is Macavity, है ना? Macavity जो है वो एक मिस्ट्री कैट है. मिस्ट्री कैट मतलब एक रहस्यमयी कैट है. उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता. जैसे देखो, Macavity, there is no one like Macavity. तो Macavity के जैसा कोई भी नहीं है. वो बिल्कुल एक अलग अलग कैट है. He is broken every human law. He break the law of gravity. अब ह्यूमन लॉ क्या होता है? चोरी ना करना, झगड़ा ना करना, ये सब लॉ के खिलाफ आता है ना. किसी को मारना नहीं, कुछ गलत काम नहीं करना. तो ये मैकवेटी जो है, ये सारे ह्यूमन लॉज को तोड़ देती है. He break the law of gravity. और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है बच्चों? क्या होता है इस नियम में? क्या है गुरुत्वाकर्षण का नियम? ग्रेविटी का जो नियम है वो है कि कोई भी जो चीज है वो ऊपर से नीचे जाएगी. मतलब कुछ भी चीज हवा में नहीं रह सकती है, वो नीचे जाना ही जाना है. उसको जो अर्थ है वो अपनी तरफ खींच लेगा बाय द पावर ऑफ ग्रेविटी. लेकिन मैक्विटी जो है, इसको तो ग्रेविटी के लॉ के भी बाहर है ये. फिर his powers of levitation would make a फकीर stare. पावर ऑफ लेविटेशन. अब फकीर का जो नाम है बच्चों यहाँ पर, फकीर मतलब जो साधु जैसे होते हैं ना, जो घर छोड़कर कहीं और रहते हैं. तो कहा माना जाता है ऐसा कि उनके पास कुछ पावर्स होती हैं. टीएस इलियट को लगता है
कि फकीर जो है उनसे भी ज्यादा जो पावरफुल है, इसके पास भी कुछ अलग सी कुछ शक्तियां हैं, कुछ ऐसा है। लेविटेशन का मतलब होता है तैरना, हवा में उड़ना। तो जो फकीर लोग होते हैं वो भी इसको स्टेयर करते ही देखते हैं कि मैक्रोटी के पास इतनी पावर्स कहाँ से आई। And when you reach the scene of crime, मैक्रोटी is not there. और मैक्रोटी जब कुछ भी अपराध करता है, तो जब आप सीन ऑफ क्राइम पे जाओगे तो आपको वहां पर मैक्रोटी दिखाई नहीं देगा, वो वहां से पहले ही भाग चुका रहता है। मतलब कि मैक्रोटी इतना तेज है। You may seek him in the basement, you may look up in the air. आप उसको चाहे बेसमेंट में ढूंढ लो, चाहे ऊपर ढूंढ लो, हवा में देख लो, मैक्रोटी जो है वो हर जगह से गायब हो चुका रहता है। But I tell you once and once again, मैक्रोटी is not there. कहीं भी ढूंढ लो, मैक्रोटी वहां पर आपको नहीं मिलेगा। मैक्रोटी is a ginger cat. He is very tall and thin. जिंजर होता है ना अदरक, जो लंबा सा भी होता है और हर जगह से उसके शेप्स निकले हुए होते हैं। तो मैक्रोटी जो है वो जिंजर कैट है। Yes, ma'am. टाइप का उसका शेप है, वो लंबा भी है और पतला भी है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम। अगर आप उसको देखोगे तो पहचान जाओगे, मतलब वो सबसे अलग है, उसकी पहचान है, वो लंबा और पतला है, उसको आप देखते ही पहचान जाओ। फॉर हिज आईज आर sunken in, और उसकी आंखें जो है वो घुसी हुई हैं। His brows is deeply lined with thought, और उसकी जो आईब्रोज है वो ऐसी लग रही जैसे वो कुछ सोच रहा है, और मोटी मोटी आईब्रोज हैं। For his eyes हाँ, his head is highly dome. डोम मतलब उसका जो सर है वो एक डोम के आकार का है, मतलब डोम जैसा होता है ना, गुम्बद टाइप का, वैसा उसका सर है, दिख ही रहा होगा आपको। फिर his coat is dusty from neglect. neglect का मतलब होता है ध्यान न देना, तो उसका जो कोट है वो डस्टी है, मतलब उसका जो फर है, जो कपड़े हैं वो निग्लेक्ट होने की वजह से उसमें धूल मिट्टी है, वो गंदगी आ गई है। His whiskers are uncombed, और उसकी जो मूछे हैं उस पर उसने कोम्ब नहीं किया हुआ है। He sways his head from side to side, और वो अपने हेड को साइड टू साइड मूव करता रहता है। With movements like a snake, जैसे सांप अपने आप को मूव करता है ना, वैसे ये अपने हेड को मूव करता है। And when you think he is half asleep, he is always wide awake. और अगर आपको लगेगा कि सो रहा है, लेकिन ये हमेशा जगा हुआ रहता है। मैक्रोटी, there's no one like मैक्रोटी। मैक्रोटी की तरह कोई भी नहीं। For he is seen in like feline shape, a monster of depravity. और ये बिल्कुल एकदम इसका जो शेप है, इसकी वजह से ये बिल्कुल ही एकदम अलग है। और ये जो मॉन्स्टर वाले जो काम होते हैं ना, मतलब कि थोड़े से गलत काम में ये इन्वॉल्व रहता है, ये थोड़ा सा गलत है। For you may meet him in my street, you may see him in the square. अब देखो बच्चों, यहाँ पे टीएस इलियट ने एक ऐसे कैट का एग्जाम्पल एक तरह से दिया है जो कि गलत काम करता है। तो ये कैट जो है ये गलत लोगों को और गलत काम को सिंबल करता है ना, ये उसका सिंबल हो सकता है कि आप हर जगह ऐसे लोगों को देखोगे। Yes, ma'am. चाहे स्ट्रीट हो, चाहे कहीं पर भी, मार्केट में कहीं पर भी आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे
But when a crime is discovered, then McVitie is not there. लेकिन ये इतना शातिर क्रिमिनल है कि जैसे ही क्राइम हो गया वैसे ही वो गायब हो जाता है। सो अब यहाँ पर देखिए ये वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर दिए हुए हैं, so you have to do this in your copy. Yes, ma'am. ये वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा। Now let's see जो इसके explanation। Yes, ma'am. देखो जो फर्स्ट स्टैंडा है उसका एक्सप्लेनेशन ये है, the speaker introduces McVitie to the readers. McVitie at the मैम speaker आवाज says, नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा देखो फर्स्ट वाला जो स्टैंजा है मैकविटी मैकविटी यहाँ से लेकर स्टेयर जो है ना स्टेयर और उसके नीचे एक और है देयर। देयर दिख रहा है यहाँ Ma'am, तक not आप there. यहाँ तक आप करते हो। हाँ द पोएम इज अबाउट ये जो है ना ये रेफरेंस हो जाएगा और सॉरी कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। रेफरेंस हमने आपको बताया है these lines have been taken from the poem Macbeth the mystery cat written by T.S. Eliot। ठीक है समझ रहे हो? मैम कॉन्टेक्ट कहाँ से रहेगा? कॉन्टेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ से। The poem is about a cat called Macbeth. He is called the hidden paw. He is a great criminal। यहाँ तक ये पहले स्टैंजा का रेफरेंस। मैम द पोएम से क्रिमिनल तक। हाँ ग्रेट क्रिमिनल तक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, रेफरेंस देखो ये है। मैम रेफरेंस लिख लेंगे। लिख लोगे?
चलो Yes, ma'am. Yes, You ma'am. can fill context होगा. Ma'am, explanation. एक्सप्लेनेशन देखो. The poet is sure that there has been no creature like Macbetty. यहाँ पे लिखा ना there is no one like Macbetty. He is broken every law. ये जो पूरा है ना यहाँ मैम बेसमेंट तक. ये पूरा बेसमेंट तक पूरा. मैम हो गया. और ये जो दिख रहा है ना ये मैक्बेटी अ ब्रेकर ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, ये आपके हार्ड वर्ड्स में आएंगे. ठीक है, ये हो जाएंगे हार्ड वर्ड्स. जो थोड़े बहुत वर्ड मीनिंग दिए हुए ना इसको आप हार्ड वर्ड में करके लिख देना. यस मैम. जैसे देखो यहाँ पे मैक्बेटी है ना, इतना हो गया, समझ गए इतना सब लोग. ये यहाँ तक क्रिमिनल तक आपका रेफरेंस था और यहाँ पोएट से लेके बेसमेंट तक आपका एक्सप्लेनेशन था. चलो अब आ Yes, जाओ ma'am. सेकंड वाले पैराग्राफ. सेकंड वाला स्टैंजा है आपका, क्या है? मैक्बेटीज जिंजर कैट. ठीक है, और अवेक. अवेक तक करो. एक सेकेंड, पूरा कर लो पूरा. नॉट देयर, जिंजर से नॉट देयर तक. मैक्बेटीज जिंजर से नॉट देयर तक. पूरा लास्ट लाइन तक. हाँ लास्ट लाइन पर, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, बार बार वही रिपीट हुआ है. जो फर्स्ट लाइन है देखो उसका ही कुछ रिपीटेशन थोड़ा बहुत है. यस मैम. मैम इसमें तो हिंदी में दिख रहा है. नहीं नहीं उसको छोड़ दो ना. ये दिख रहा है, ये वाला यहाँ से. यस मैम. यहाँ से पूरा यहाँ तक आपका लास्ट वाला एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है. ठीक? मैम वो मैकेविटी अपीयरेंस भी नहीं लिखना है ना. हाँ ये भी नहीं लिखना. बाकी यहाँ से पूरा नीचे तक लिखना है. जो चीजें काट दी है उसको नहीं लिखना. यस मैम. इसका कॉन्टेक्स्ट. हाँ मैम इसका कॉन्टेक्स्ट. हाँ बता रही. इसका कॉन्टेक्स्ट होगा ये. एक सेकंड, पहले ये लिखोगे. ये द पोएट सेज दैट. ठीक है, पहले लिखना है द पोएट सेज दैट. यस मैम. ये हो गया. इसको लिखने Yes, के ma'am. बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है. ही हैज, ही की जगह पे मैक्बेटी है ना, ही को Yes, ma'am. हटाकर मैक्बेटी लिखना है. Yes, ma'am. फिर उसके बाद ये has openly disobeyed the law, yet the police Scotland Yard is helpless. ये पूरा यहाँ तक. Flying squad runs after it. Ma'am runs after it. हाँ runs after it तक पूरा.
यहाँ से पूरा, बस इतना आपका एक्सप्लेनेशन, डिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट पूरा हो। यस मैम। मैम जो होमवर्क आता है मैम व्हाट्सएप पर, उसी हिसाब से होमवर्क हाँ, करना रहता है ना? वो भी आपके बुक का ही दिया रहता है, अगर आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो उसको उसमें सब कुछ आ जाता है ना। वो एक एक एक्सरसाइज दी रहती है आपकी डेली जो कराते हैं, जैसे अब ये करा दिया तो इसको दे दिया, लेकिन अगर आपने पूरा पूरा चैप्टर कर लिया पहले से सॉल्व, तो सब उसी में आ गया। या तो डेली करो या तो कंप्लीट करो, कंप्लीट करना है। यस मैम मैम। हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट कर लेती हो ना? यस मैम, और जब मैम होमवर्क आता है तो मिला लेते कौन कौन सा हो गया। चलो ठीक है। सब होमवर्क आपकी बुक की एक्सरसाइजेज ही रहती हैं और कुछ भी अलग से नहीं होता है। तो फिर बच्चों इतना ये मैथमेटिक्स का हो गया। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर कौन यस सा मैम। है? नेक्स्ट चैप्टर इज बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यस मैम। तो इसके जो हार्ड वर्ड्स है, चाहो तो वो भी कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर ही लेंगे। मैम हार्ड वर्क कर तो लेंगे। वर्ड वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड। वर्ड यस मीनिंग मैम। देखोगे तो आप पूरे बुक में दिए हुए हैं। मैम यस मैम। हाँ बोलो। मैम ये मैकबेथी वाला जो मैम पोयम है, क्या? मैम इसको भी कर ले। मैम ये जो मैकबेथी की स्टोरी है मैम, हाँ, मैम इसके वर्ड मीन वो हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग और क्या इससे कॉन्टेक्स्ट आता है। हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग और क्या बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा। मैम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। हाँ, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो कर लिया तुमने, ठीक। उसके पहले तुम लिखोगे वर्ड मीनिंग, जो इस बुक पे दी हुई है, पहले से हमें दिखाया था ना, दिखा दे फिर से। यस मैम मैम देखे थे। मैम बुक है। मैम पोयम के बाद था। हाँ, तो वो कर लिया। और दो तीन वर्ड्स अभी उसमें दिखाए थे हमने एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको उसमें बुक में कुछ हार्ड लगा है तो उसको देख लो, नहीं तो बस बोले तो हम बता दे दो तीन वर्ड, उसको लिख लो, बस हो गया हार्ड वर्ड। यस मैम। हार्ड वर्क का इमेज सेंटर दिखना है ना 5? हाँ बिल्कुल करेक्ट, उसी का उसको लिखोगे ना तो भी बहुत अच्छे से वो हार्ड वर्ड दिमाग में रह जाता है। तो दिख रहा है ये वाला आपका नेक्स्ट चैप्टर, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। यस मैम। हाँ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस मैम। सभी के पास बुक है? यस मैम। यस मैम। चलो, जिनके पास नहीं है, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वर्ड के, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बोलते ही नहीं है। रुद्राक्ष, यस मैम। बुक है आपके पास बेटा? यस मैम। शिवम, यस मैम। आपके पास बुक है? नो मैम। अच्छा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वर्ड मीनिंग का, ताकि आप वर्ड मीनिंग अच्छे से कर लो। ठीक है मैम। यहाँ पर है, ये वाला है हेड, फिर यहाँ पर और ये काफी सारे वर्ड। बच्चों ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलो इतना है। So students, that is it for today. I will see you in the next class. ठीक है?
Thank you all. Bye bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.